Hello children. Now next topic in the chapter how do organisms reproduce is male and female reproductive system. So we first discuss the male reproductive system. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जब भी हम किसी भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को करते हैं वी स्टडी दिस इन 3 पार्ट्स. वन is gonad, second is duct system, and third that is the glands. Gonads, duct system and gland. Gonads, they are a pair of testes in the male reproductive system. Testes, they lie in a muscular bag called scrotum. They are extra abdominal. Then there are the tubule system which carries gametes from the testes to exterior, and that forms the duct system. And then different glands, they are present in the reproductive system. This testes, they are present in the scrotum, that is extra abdominal. Now this is important because production of sperms, or it is called spermatogenesis, sperm formation, requires a lower temperature 2 to 2.5 degree less than the normal body temperature, and this is obtained only by the scrotal sacs. And if testes they are present in the abdomen, then spermatogenesis cannot occur. That leads to sterility. Function of testes, dual function. One is production of sperms, second is production of male sex hormone, that is the testosterone. So testes, they are also mixed gland or heterocrine gland. Exocrine as well as endocrine glands are there. Now in the next slide we see the structure. So here you see it is the scrotum, बाहर ये scrotum दिख रहा है और इसके अंदर ये एक testis, इसी तरह से दूसरी testis दूसरी साइड पे होगी, and duct जो इसके बाहर से आ रही है, that is known as vas deferens. This singular is vas deferens, plural is vasa differentia. Then it enters into the abdomen. Abdomen में क्या होता है? रास्ते में it gets a duct from the urinary bladder also. Then it gets ducts from the glands also. And all these open commonly in the urethra. So common duct. Prostate gland, that is a single gland. तो ये तो हो गई हमारा गोनेट और ये हो गया हमारा डक्ट सिस्टम जिसमें हमारी ये आ रही हैं vas deferens, then duct from these glands और फिर यूरेथ्रा, ये सारा डक्ट सिस्टम में आ गया. और ये जो है ग्लैंड सेमिनल वेसिकल, यहाँ पे एक दिखा ना, एक दूसरी साइड से है. डक्ट्स ऑफ बोथ द साइड, vas deferens ऑफ बोथ द साइड, दे ज्वाइन कॉमनली हियर. तो ये इकट्ठी हो जाती है, एक इस साइड से आती है एक इस साइड से, यहाँ एक ही साइड से दिखाई है. देन ये सिंगल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, तो ये जो है इट इज सिंगल ग्लैंड और इसकी डक्ट भी जो है वो ज्वाइन कर जा रही है vas deferens के साथ. So that is a duct system. And in your book also there is a given a very good क्लियर डायग्राम. बुक में भी आपके काफ़ी क्लियर देखो दिया हुआ है. ये जो है आपका टेस्टिस, देन एंड वास डेफरेंस, एंड देन एंड वास डेफरेंस ऊपर जा रही है एब्डोमेन में, और रास्ते में ये यूरिनरी ब्लैडर से भी डक्ट आ रही है, ये यूरिनरी ब्लैडर की डक्ट है. और ये एक सिंगल ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड, और ये पेयर ऑफ ग्लैंड्स है, सेमिनल वेसिकल, ये एक यहाँ है एक इस साइड पे होगा, है ना. तो दोनों इसकी डक्ट भी सेमिनल वेसिकल की भी vas deferens से जुड़ जा रही है, प्रोस्टेट ग्लैंड की भी vas deferens से जुड़ जा रही है, और यूरेटर की भी vas deferens से जुड़ जा रही है. एंड देन देयर इज अनदर ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड. तो ये जो है different glands, duct system and gonad, they form the male reproductive system. Next जो है हम देखते हैं कि what are these name of these glands or functions of these glands. तो functions जो है of these glands, ये है accessory gland associated with the male reproductive system.
Seminal vesicle, they secrete alkaline viscous fluid, and this is known as a semen, that provides nutrition to the sperms and help in the motility of the sperm. इसी तरह prostate gland and Cowper's gland, they also secrete their secretion and they help in the transport of sperms. So ये सारे glands का जो काम होता है, one is providing nutrition to the sperm, second is help in the lubrication और उनको facilitate करते हैं movement of the sperms. ठीक है, so that is about the male reproductive system. Then the female reproductive system, again gonads, duct system and glands. So a pair of ovaries, that is a gonad. और फर्क क्या है? Ovaries are present in the abdominal cavity near the kidneys. Each ovary contains a number of follicles उसके अंदर, which on maturity at the puberty they become eggs. ये जो eggs हैं वो fetus stage से बन जाते हैं, यानी कि unborn girl child में thousands of eggs they are present, but they become mature, start becoming mature at the puberty. तो male reproductive system में sperms जो है वो puberty में, adolescent की beginning में बनने शुरू होते हैं, लेकिन female reproductive system में eggs पहले से फीटल स्टेज पे बन जाते हैं, लेकिन मैच्योर प्यूबर्टी में होना शुरू होते हैं. देन there are falloduct system में fallopian tubes or oviduct, and fallopian tubes opens into the uterus opens into the vagina through the cervix. So function of the ovary, again two function, one is production of female gamete, that is egg or the ovum, second is secretion of female hormone, that is the estrogen. So here we see the structure of the female reproductive system. यहाँ पे दोनों साइड पे दिखाई है, ये है ओवरी, सॉरी, ये अ पेयर ऑफ ओवरीज एब्डोमिनल में होती हैं, नॉट एक्स्ट्रा एब्डोमिनल लाइक द मेल गैमेट रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फिर ये जो डक्ट इससे निकलती हैं इसको हम बोलते हैं ओविडक्ट, ये सारी ओविडक्ट है. तो इसका जो शुरू वाला पोर्शन है ये फनल शेप्ड है ना, दिस इज नोन एज फेलोपियन ट्यूब, इसको हम फेलोपियन ट्यूब कहते हैं. पूरी ओविडक्ट है, शुरू वाला पोर्शन फेलोपियन ट्यूब ये, और यहाँ पे दोनों साइड की फेलोपियन ट्यूब, इस साइड से भी इस साइड से भी, ये मिल के ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जो बना रही है ये बड़ा, दिस इज नोन एज अ यूटेरस और वूम, जिसमें जो है वो बेबी डेवलप होता है. सो दिस इज द यूटेरस. फिर दिस ओपन्स आउट थ्रू द सर्विक्स, दिस इज द सर्विक्स इनटू द वेजिना, तो ये वेजिना से ओपन हो जाता है. स्पर्म्स दे एंटर थ्रू द वेजिना, यहाँ से ये स्पर्म का स्ट्रक्चर क्या होता है? टेल, दे हैव अ टेल एंड अ हेड लाइक स्ट्रक्चर, हेड एंड टेल. तो ये एंटर करता है थ्रू द वेजिना. फिर यूटेरस से ये यहाँ पे एंटर कर जाता है और यहाँ पे आ जाता है यूटेरस में एग आता है. यूटेरस, सॉरी, स्पर्म्स दे एंटर थ्रू द वेजिना एंड देन थ्रू द सर्विक्स दे एंटर इनटू द यूटेरस. तो यहाँ पे ये हमारे ये स्पर्म्स जो है वो यहाँ पहुँच जाते हैं. सिमिलरली एग यहाँ फॉर्म होता है ओवरी में, ओवरी से इधर से आता है फेलोपियन ट्यूब से, ओविडक्ट से इधर से आके यहाँ पे आ जाता है. तो एग जो है वो इधर से आता है इन द यूटेरस, और स्पर्म जो है वो यहाँ से वेजिना से आता है इन द यूटेरस. हियर दिस इज अ साइट यूटेरस, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, मतलब यूटेरस में तो नहीं पर यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होती है. फिर जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है जाइगोट इज फॉर्म, देन इट अगेन मूव्स इनटू द यूटेरस. सो अगेन रिमेंबर, sperm enters through this vagina, enters in the uterus and then comes in the fallopian tubes. Egg released from the ovary, in 1 month 1 egg is released. तो एक बार एक महीने में एक ओवरी एग रिलीज करती है, दूसरे महीने में दूसरी ओवरी रिलीज करती है. तो एग जो है वो फेलोपियन ट्यूब में आता है, स्पर्म भी फेलोपियन ट्यूब में नीचे से आता है, और फिर जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, अगर वो साइमल्टेनियसली आती हैं, क्योंकि
बेटा जो एग तो सिर्फ एक ही बार होना है रिलीज, तो अगर एग वो एक बार जो रिलीज होगा वो 2-3 दिन तक लाइव रहेगा। तो अगर इस टाइम पे ये एग प्रेजेंट है और स्पर्म नीचे से आ गया तो फर्टिलाइजेशन होगी। अगर स्पर्म आ भी गए हैं, एग नहीं प्रेजेंट है, तो नो फर्टिलाइजेशन इज देयर। इफ एग इज देयर, नो स्पर्म्स कम, देन आल्सो नो फर्टिलाइजेशन इज देयर। ओके, तो फर्टिलाइजेशन तभी होगी when egg and sperm both meet at the fallopian tube. Then after fertilization they come into the uterus, और uterus में further development होती है। तो ये हम करेंगे नेक्स्ट टाइम कि डेवलपमेंट जो है दैट अकर्स इन द यूटेरस, और एक प्लेसेंटा, एक स्पेशल डिस्क लाइक टिश्यू इज फाउंड ऑन द इनर वॉल ऑफ द यूटेरस। ये एक प्लेसेंटा सा ये स्ट्रक्चर बन जाता है, एंड मतलब दोनों के बीच में कनेक्शन होता है मदर और के यूटेराइन टिश्यू में, और जो जाइगोट बनता है, तो फिर उसके बाद जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से जो है वो पूरा फीटस डेवलप होता है। तो एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट as well as oxygen from the mother's blood with the help of placenta. Similarly, embryo removes waste and carbon dioxide through the प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा जो है दैट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, एज वेल एज ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, carbon dioxide from the fetus to the mother's blood. So here it is fetus, it is shown how it is connected with the umbilical cord, with the placenta. So placenta, that is a tissue between the mother and the fetus. तो ये हो गया हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो नेक्स्ट टाइम वी विल डू द contraceptive methods as well as what happens if फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तब क्या होता है? इनर लाइनिंग ऑफ यूटेराइन वॉल, यूटेरस की इनर वॉल थिक होती जाती है धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि उसने फीटस को सपोर्ट करना होता है, ताकि अगर फीटस हो जाए तो उसको सपोर्ट करना है। लेकिन मान लो कि फर्टिलाइजेशन नहीं होती, फीटस नहीं है बीच में, तो क्या होगा? यूटेराइन वॉल breaks and this comes removed through the vagina as a blood and the mucus. This is known as menstruation and this occurs every month and lasts from 2 to 5 days. तो इसमें एग भी बाहर आ जाता है प्लस यूटेराइन वॉल भी बाहर आ जाती है, ब्लड, तभी ब्लड एंड म्यूकस कम्स आउट। दिस इज नोन एज menstruation. तो menstruation तभी होती है इफ देयर इज नो फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो वॉल नहीं ब्रेक करेगी, वो थिक एंड थिक होती जाएगी to support the fetus, and this there is no menstruation. So no menstruation जो है it is a sign of pregnancy. So this completes our female reproductive system. Next time we will discuss different methods of contraceptives. Thank you so much.